ضلعی انتظامیہ پشاور کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ مردہ جانوروں کا گوشت سپلائی کرنے والا گروہ سرغنہ سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 850 کلو مردہ جانوروں کا گوشت برآمد۔ دکانوں کو سپلائی کرنے سے پہلے مضر صحت گوشت گاڑی سمیت سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ چونیا کے بلو رام چوک میں خستحال مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ نعش نکال لی گئی۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں میاں بیوی سمیت 2 بچیاں شامل ہیں۔ نعشوں کی شناخت جاوید، فاطمہ، خدیجہ اور مناہل کے نام سے ہوئی ہے۔ خیرپور ٹامے والی میں تیز رفتار ٹرک کی سکول وین کو ٹکر۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق 7 شدید زخمی ہو گئے۔ 5 کی حالت تشویشناک۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے طالب علموں کو بہاول وکٹوریہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے طالب علموں کی شناخت محمد سعد اور اویس کے نام سے ہوئی۔ ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے ڈی پی او آفس حافظ آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈی پی او حافظ آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو جلد از جلد میرٹ کی بنیاد پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل و شکایت کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ چکوال کے تھانہ نیلا کے علاقے میں ایک ہی رات میں چور 4 گھروں کا صفایا کر گئے۔ چور تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقد اور قیمتی سامان لے اڑے۔ لوگ سراپا احتجاج۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کی وجہ سے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ مظاہرین کا اعلی حکام سے نوٹس لینے اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ پشاور کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ مردہ جانوروں کا گوشت سپلائی کرنے والا گروہ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود کا کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے 850 کلو مردہ جانوروں کا گوشت برآمد کر لیا گیا۔ دکانوں کو سپلائی کرنے سے پہلے گاڑی سمیت سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ محکمہ جنگلات کی بڑی کرپشن۔ بلین ٹری کی مد میں جعلی مسٹ رول کے ذریعے فنڈ خرد برد۔ قومی خزانے کو لاکھوں کا ٹیکہ لگا دیا گیا۔ ٹمبر مافیا سے مل کر جنگلات کا صفایا شروع ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک عابد کی اس رپورٹ میں۔ 89, 90, 94 اور 95 میں کام کروایا گیا، جو کہ اس وقت 50% کروا کر ان جنگلات کو کلیئر کر دیا گیا، جس میں جیلی میٹرول کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے محمد سلیم ایف جی، اس وقت کے بلاک آفیسر وجی الدین اور رینج آفیسر مبشر شاہ شامل ہیں۔ 3 ملین پروگرام میں پودوں کے بیج لگائے جانے تھے، جو کہ بر وقت کام نہ کیا گیا بلکہ جعلی فرضی لوگوں کے انگوٹھے ثبت کیے گئے۔ اس مسٹرول میں بے ایمانی سے کام لے کر فنڈنگ لاکھوں کی فنڈنگ خرد برد کی گئی۔ شکایت پر بھی چھوٹے پودے لگائے جا رہے ہیں جن کا سٹاک موضع سندن، جو کہ جنگلات کے پاس کا علاقہ ہے، وہاں پہ کافی مقدار میں موجود ہے اور وہ کافی خوش سالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ان کے خلاف ایک انکوائری CC 117/21 ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راولپنڈی کے پاس زیر سماعت ہے۔ جب شیخ ثاقب کنزرویٹر نارتھ فارسٹ راولپنڈی، اشفاق بشیر بٹا DFO نارتھ راولپنڈی، تنویر شہزاد RFO کلر سیدہ راولپنڈی سے موقف دینے کو کہا گیا تو یہ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کی خاطر موقف دینے سے صاف انکاری ہو گئے۔ کیمرہ مین سردار عمران کے ساتھ ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی جانب سے انسداد گداگری آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کا آغاز چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارا احمد کی ہدایت پر کیا گیا۔ انسداد گداگری آگاہی مہم کا سلوگن بھیک نہیں کھانا دے رکھا گیا۔ آگاہی مہم کے دوران پیشہ ور بھکاریوں، خصوصاً بھکاری بچوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ مہم کے دوران شعور اور آگاہی کے لیے سیمینار، واک اور مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا جائے گا۔
ڈجکوٹ رکھ برانچ نہر کی بھل صفائی بھی سیاست کی نظر ہو گئی۔ چند کلومیٹر نہر کی صفائی تو حکومتی نمائندگان نے کروا دی، باقی حصہ بھل صفائی بغیر ہی چھوڑ دیا گیا۔ کسانوں کو پانی پوری مقدار میں نہیں مل رہا، گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، جانوروں کو پانی بھی میسر نہیں ہوگا۔ کسانوں کی اعلی حکام سے اپیل ہے کہ رکھ برانچ نہر ڈجکوٹ کی بھل صفائی کو مکمل طور پر کیا جائے تاکہ نہری پانی کسانوں تک پوری طرح پہنچ سکے۔ ایس ایس پی منصور امان کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ملک سعد شہید پولیس لائن پشاور میں سی سی پی او عباس احسن، چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید خان مروت، ایس ایس پی آپریشنز یاسر آفریدی، ڈی سی پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد، ڈی پی او خیبر سمیت پولیس کے اعلی افسران نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر سی سی پی او عباس احسن نے ایس ایس پی منصور امان کو بہترین پولیس آفیسر قرار دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز یاسر آفریدی نے بھی ایس ایس پی منصور امان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر ایس ایس پی منصور امان نے کہا کہ پی کے پولیس افسرانوں جوانوں کی جانب سے ملنے والی عزت و محبت وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سی سی پی او عباس احسن، ایس ایس پی آپریشنز یاسر آفریدی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ایس ایس پی منصور امان کو خصوصی شیلڈ، تحائف اور سووینیر پیش کیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چونیا کے بلو رام چوک میں خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، نعشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں میاں بیوی سمیت 2 بچیاں شامل ہیں۔ نعشوں کی شناخت جاوید، فاطمہ، خدیجہ اور مناہل کے نام سے ہوئی ہے۔ مصطفیٰ آباد میں ہڑتال کی کال پر ڈی ایس پی کے انجمن تاجران سے مذاکرات۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ ڈی پی او قصور عمران کیشور نے مصطفیٰ آباد میں وارداتوں پر قابو پانے کے لیے 10 پولیس اہلکاروں کا اضافہ کر دیا ہے۔ تفصیلات عامر شہین کی اس رپورٹ میں۔ ہڑتال کی کال دینے پر ڈی ایس پی سید اشفاق اعظمی کے تاجروں سے مذاکرات۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران باؤ غلام رسول اور سابقہ چیئرمین میونسپل کمیٹی مصطفیٰ میاں عبد الخالق اور ایسٹو تھانہ مصطفیٰ مہر محمد شریف اور کونسلر سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد موجود۔ تاجروں نے شہر میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سید اشفاق اعظمی نے کہا، انجمن تاجران مصیبات کے تحفظات جائز ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ شہر کی ناکہ بندی کر کے جرائم پیشہ افراد پر زمین تنگ کر دیں گے۔ عوام اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع پولیس کو دیں، پولیس فوری کارروائی کرے گی۔ ڈی پی قصور عمران کیشور کے حکم پر عوام کو سخت سیکورٹی مہیا کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر شہین، کوہ نور نیوز، مصطفیٰ آباد۔ سینٹ الیکشن سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی جوڑ توڑ عروج پر۔ سینیٹر شمیم افریدی اور رکن صوبائی اسمبلی امجد افریدی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیت کا اعلان 27 فروری کو بلاول بھٹو زرداری کو ہارٹ کے دورے کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کے دوران کریں گے۔ تفصیلات فیضان بنوری کی اس رپورٹ میں۔ سینیٹر شمیم افریدی اور ممبر صوبائی اسمبلی امجد خان افریدی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ باپ بیٹے نے چند روز قبل بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ شمولیت کا اعلان صوبائی صدر ہمایون خان کی موجودگی میں کیا گیا کہ ہمارے کوہاٹ سے معروف خاندان، بااثر سیاسی خاندان شمیم افریدی صاحب سینیٹر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ امجد افریدی صاحب ایم پی اے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں 27 فروری کو شمولیت کا اعلان کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کوہاٹ تشریف آئے اور ایک بڑے جلسہ عام میں ہمارے یہ ساتھی اور پارٹیوں سے لوگ انشاءاللہ 27 فروری کو کوہاٹ میں بابری بانڈا فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ عام منعقد ہوگا۔ تو یہاں پہ آج اسی جلسے کی تیاری کے سلسلے میں اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آمد کے سلسلے میں ہماری میٹنگ بھی ہوگی۔ سینیٹر شمیم افریدی نے کہا کہ کوہاٹ پی ٹی آئی کے بعض اراکین اس سے قبل بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف ووٹ دے چکے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی امجد خان افریدی نے کہا کہ اب میرا جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، فیصلہ بہت پہلے کر چکے تھے، کرونا وائرس اعلان میں تاخیر کا باعث بنا۔
हैसियत में इलेक्शन जीता है, इलेक्शन जीते हुए मुझे 2.5 साल हो गए और इस दफा मैं कोई हुकूमती पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। ये मैं अपने हलके की, अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इस दफा मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली और ये पार्टी तादाम मर्द जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमजद अफरीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी सियासी पार्टी या तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। इस मौके पर अजीम बाग के अलावा इलाका बंगश के रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार की रिहाइशगाह पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की कोहाट आमद के हवाले से बातचीत की गई। कैमरामैन इलान शाह के साथ सैयद फैजान बनूरी को नूर न्यूज कोहाट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तजावुजात के खात्मे और सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद हुसैन ने चक नंबर 25 BC में रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए 200 कैनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। तफसीलात बहावलपुर से ब्यूरो चीफ फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब के हिदायत पर तजावत के खात्मे के लिए सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल की ज़रिए निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर जाहिद हुसैन ने चक नंबर 25 BC में रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए 200 कनाल सरकारी अराजी वागुजार कराई। वागुजार करी गई सरकारी अराजी की मालियत 5.5 मिलियन रुपए है। सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया ने फसलें काश्त की हुई थी, ट्रैक्टर चलाकर सरकारी अराजी वागुजार कराई। एसी सदर जाहिद हुसैन ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत के हिदायत पर कार्रवाई जारी रहेंगी, किसी से रियायत नहीं की जाएगी। कैमरामैन खुर्रम मुश्ताक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मलिक काशिफ नवाज का कब्जा ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन। नाजायज काबजीन से करोड़ों रुपए मालियत का 265 कैनाल सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। तफसीलात मंडी बहाउद्दीन से जहीर बाबर असद की इस रिपोर्ट में। पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मलिक काशिफ नवाज ने तहसील मंडी बहाउद्दीन के मौजा का काम कब्जा ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन किया और नाजायज काबजीन से 265 कनाल 14 मरले सरकारी रकबा वागजार करवा लिया। वागजार करवाई गई जमीन की मालियत 6 करोड़ 66 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। वागजार करवाई गई जमीन पर बासर अफराद ने डेरे बनाकर फसल काश्त की हुई थी और कब्जा ग्रुप को 62 शख्सियात की पुश्तपनाही हासिल थी। ऑपरेशन में रेवेन्यू स्टाफ, पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक काशिफ नवाज का कहना था कि जिला भर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत है कि सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने अफसरान को हदायत की कि किसी दबाव में आए बगैर मेरिट पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि नाजायज काबजीन और तजावुजात के खिलाफ आगाही मुहिम के जरिए अवामुन्नास का इंतजामिया के लिए ताउन भी जारी है। शहरियों ने कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की भरपूर कार्रवाई को खुश आइंद करार दिया। दूसरी तरफ अवामी हलकों का ये भी कहना है कि देहातों में गड़ा खाद, रकबा जोहड़ और दीगर रकबा जात को भी काबजीन से वागुजार करवाकर निकासी आब के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अवामी हलकों का ये भी कहना है कि जायज काबजीन से मफाद आमा की जमीनें छुड़वाने के लिए DC मंडी बहाउद्दीन खुसूसी अहकामात जारी करें ताकि दही इलाकों में सफाई और निकासी के निजाम। डॉक्टर रिजवान अहमद खान की जानिब से DPO ऑफिस हाफिजाबाद में खुली कचहरी का इन्नकाद। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO हाफिजाबाद ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतलका अफसरान को जल्द अज जल्द मेरिट की बुनियाद पर हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO हाफिजाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद का कहना था कि खुली कचहरियों के इन्नकाद का बुनियादी मकसद पुलिस और अवाम के माबैन फासिलों को खत्म करके अवाम के मसाइल और शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला यकीनी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद गुलाम अली मुर्तजा शाह की जेर सदारत जिलाई अफसरान का तारफी इजलास। डिप्टी कमिश्नर का स्कूल्स और हस्पतालों के दौरे करके जाती तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला। सैयद मुर्तजा अली शाह ने तमाम महकमों को अदालती अहकामात पर अमल दरामद और कानूनी मामलात को हल करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत दी। कहा सरकारी जमीनों, प्लाटों और दीगर अमलाक से फौरी तौर पर कब्जा खत्म करवाएं। जिलाई अफसरान मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।
चकवाल के थाना नीला के इलाके में एक ही रात में चोर 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकद और कीमती सामान ले उड़े। लोग सिरापा एहतजाज, चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों की वजह से अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इलाके के लोगों का आला हुकाम से नोटिस लेने, मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालिबा। फैरोजवाला के नवाही गांव के करीब मुसाफिर वैन और मजदा ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में ड्राइवर समेत 10 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुतअद्दिद अफराद के बाजू और टांगे टूट गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन चक्करगढ़ से लाहौर आ रही थी। बुरेवाला के नवाही गांव मोजा खोखरा में डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी का फैक्ट्री पर छापा। मुदर सेहत खोया तैयार करने वाली फैक्ट्री सील। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि पाउडर, सूजी, रंग और केमिकल से तैयार करदा दूध की मिलावट से मुदर सेहत खोया तैयार किया जा रहा था। खैरपुर टामेवाली में तेज रफ्तार ट्रक की स्कूल वैन को टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाम बहक, 7 शदीद जख्मी हो गए, 5 की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में जाम बहक और जख्मी होने वाले तालिब इल्मों को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा धुंध के बायस तहसील खैरपुर टामेवाली के अड्डा इसरानी पर पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर हारून आबाद का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। चक नंबर 137/6R में 3,58,16,000 रुपए मालियत की 10 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। जमीन पर लोगों ने कमर्शियल नोयत का कब्जा कर रखा था। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब, रेवेन्यू अफसरान और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना कोट मिठन पुलिस की मंशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बेनजीर शहीद अप्रोच रोड पर दौरान तलाशी कार से 15 किलोग्राम चरस बरामद। मुलजम रात के तारीकी का फायदा उठाते हुए मौका से फरार। पुलिस ने गाड़ी को अपनी तहवील में लेकर नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चौबारा की काश्तकारों का एहतजाज। किसानों ने एहतजाज करते हुए तहसील चौबारा को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बारिश ना होने से चने की फसल बेहतर नहीं हो सकी, ज़रई कर्जे मुआफ भी किए जाएं। तफसीलात रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। अब की सहराई तहसील चुबारा में काश्तकारों की जानिब से बड़ा एहतजाज किया गया। एहतजाज का मकसद तहसील चुबारा को आफत ज़दा करार दिलवाना और फसलों की काश्त पर ज़रई बैंकों से लिए गए कर्जे माफ करवाना था। चुबारा के रिहायशी किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा, गुज़श्ता 3 सालों से फसलात ना हो सकी हैं। बारिश ना होने की वजह से चने की फसल भी मर चुकी है, जिससे उनको लाखों रुपए के खसारे का सामना है। किसानों की जानिब से एहतजाज में नाराबाजी भी की जाती रही। मुजाहिरीन ने कहा कि फसल की काश्त पर ज़रई बैंकों से कर्जे लिए गए थे, मगर अब चने की फसल ना होने से वो मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि तहसील चुबारा को आफत ज़दा करार देने के साथ साथ ज़रई बैंकों से लिए गए कर्जे भी माफ किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा रिजवान चीमा, कोहिनूर, चौक। हरिपुर एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम मुकदमात में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा कि पुलिस ने थाना खलाबट, थाना बीड़ और थाना कोट नजीबुल्ला में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुल्जमान को कम वक्त में गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पर अवामी हलकों का इत्माद में इजाफा हुआ है। तफसीलात राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। एसपी इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान ने कहा है कि जिला बार के मुख्तलिफ थानों को अहम नोयत के मुकदमात में मतलूब मुल्जमान की गिरफ्तारी में अहम पेशरफ्त हुई है। थाना खलाबट, थाना कोट नजीबुल्ला और थाना बीड़ के स्टाफ ने मुल्जमान को इंतहाई कलील वक्त में ट्रेस किया है, जो कि काबिल सताइश है। इन्हें बहुत जल्द इनामात से भी नवाजा जाएगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि थाना खलाबट के हदूद में 3 रोज कबल रनमा होने वाले दिलसोज वाक़े में, जिसमें एक शख्स को भट्टी में जलाया गया था, इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़म को बरवक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस वाक़े का चश्मदीद गवाह भी मिल गया है। इसी तरह थाना बीड़ के हदूद में डकैती के दौरान जख्मी होने वाले शख्स को नामालूम मुल्जमान को भी बमा असला गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि थाने कोट नजीबुल्ला की हदूद में बुसोमेरा के अंदर नौजवान को कत्ल करने वाला मुल्जिम भी पुलिस की अनथक मेहनत के बाद ट्रेस किया। उन्होंने पुलिस की मजबूत कारकर्दगी के हवाले से बताते हुए कहा, इसी तरह जिना 377 की और 376 की जो केसेज है 47 है, 47 के 47 जो है ना वर्ल्ड आउट हो चुके हैं। मुतफर्रिक में हमारी 1107
1007, उसमें से 1001 वर्कआउट हो चुकी हैं। टोटल मुकदमात में अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो 1700 हमारी हैं 2020 की 1700, उसमें से 1681 1681 हमारी वर्कआउट हो चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि तीनों अहम नौइयत के मुकदमात में कम से कम वक्त में पेश रफ्त को जहां पुलिस के आला अफसरान ने सराहा है, वहीं पर अवामी हलकों की जानिब से भी एतमाद में इजाफा हुआ है। राशिद महमूद। दुनियापुर में वैक्सीनेशन न होने से लाखों के मवेशी हलाक। चक नंबर 301 WB में अहले इलाका वेटरनरी अस्पताल जंडीरवाह के इंचार्ज डॉक्टर करामत के खिलाफ सिरापा एहतजाज। साबिक जनरल कौंसलर मलिक हबीबो दीगर अहले इलाका ने मीडिया को बताया कि जब से वेटरनरी डॉक्टर करामत ने अस्पताल का चार्ज संभाला है, हमारे जानवरों में वैक्सीनेशन नहीं की गई। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मोबाइल मोटरसाइकिलें जाती कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहानिया पुलिस ने दोहरे कत्ल के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बेटे ने दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर करने वाले वालिद और खातून को मौत के घाट उतारा था। लाशें खेतों से बरामद हुई। पुलिस को बताया कि वालिद मोहम्मद रमजान ने गांव की बेवा खातून समीना से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुलाजिम अब्दुल रहमान के हमरा दोनों को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। रेनाला खुर्द में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के हवाले से सेमिनार का इन्नकाद। वाइस चांसलर ने अपने खिताब में कहा, आरपीओ और डीपीओ की शिरकत। तलबा में हेलमेट तकसीम किए गए। ट्रैफिक के मसाइल इंसानी रवैये के मसाइल हैं और उनका हल तालीम से ही मुमकिन है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जकरिया जाकिर, रीजनल पुलिस ऑफिसर अहमद अरसलान मलिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना फैसल शहजाद ने खिताब किया। टंडो मस्ती में शोहर ने बीवी को फंदा देकर मार डाला। निवाही गांव पीर मोहम्मद नारीजो के इमाम डन्नो ने बीवी रोशन खातून को दुपट्टे से गला घोंटा। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू तनाज़ा पर शोहर ने बीवी को कत्ल किया। टोबा टेक सिंह थाना रजाना के इलाके से 7 साला बच्ची लापता। चक नंबर 360 गाफ बे के 7 साला रबिया फातिमा को गुम हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा हो गया। बच्ची के वालिदैन की कोहिनूर न्यूज पर दुहाई। मुकामी पुलिस ने भी रबिया फातिमा की तलाश शुरू कर दी। मरकजी जमात अहले सुन्नत वस्ती पंजाब के ज़ेरे एहतमाम ताजियती रेफरेंस कुतुब मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी की साहबजादी के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गईं। पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देजी, अमीर सूबा पंजाब सैयद बिलाल हुसैन शाह गर्देजी, सैयद मोहम्मद शफकत, हकीम सरवर हुसैन जाहिद, सुहेल अहमद कादरी, शेख मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद बूटा अब्बास और मोहम्मद यासीन मसूद ने शिरकत की। इजलास में अजीज़ो अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि मरकजी जमात अहले सुन्नत वस्ती पंजाब के ज़ेरे एहतमाम ताजियती रेफरेंस कुतुब मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी की साहबजादी के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गईं। पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देजी, अमीर सूबा पंजाब सैयद बिलाल हुसैन शाह गर्देजी, सैयद मोहम्मद शफकत, हकीम सरवर हुसैन जाहिद, सुहेल अहमद कादरी, शेख मोहम्मद उम्र, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद बूटा और मोहम्मद यासीन मसूदी ने शिरकत की। इजलास में अजीज़ो अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जेर सदारत आला सतही इजलास। डीसी ऑफिस में होने वाले इजलास में अद्वियात के मायार और कीमतों का जायजा लिया गया। इस मौका पर मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास खुसूसी हिदायत जारी की। ड्रग इंस्पेक्टर समेत मुतलका हुकाम ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 32 केसेस पर गौर किया गया। 5 केसेस कोर्ट भिजवाए गए। 16 वार्निंग जारी की गई। 2 FIR का इंदराज करवाया गया। 9 केसेस मुलतवी किए गए। आपको बता रहे हैं कि डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। डीसी ऑफिस में होने वाले इजलास में अद्वियात के मायार और कीमतों का जायजा लिया गया। इस मौका पर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में खुसूसी हिदायत जारी की। ड्रग इंस्पेक्टर समेत मुतलका हुकाम ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 32 केसेस पर गौर किया गया। 5 केसेस कोर्ट भिजवाए गए। 16 वार्निंग्स जारी की गई। 2 FIR का इंदराज करवाया गया और 9 केसेस मुलतवी किए गए।
लाहौर में गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच न्यू रजिस्ट्रेशन व्हीकल में नई फीस का इतलाक हो गया। 1000 सीसी पर 50,000 जबकि इससे ज्यादा पर 1 लाख तक का टैक्स लागू होगा। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में गाड़ियों की नई रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच न्यू रजिस्ट्रेशन व्हीकल में नई फीस का इतलाक हो गया। 1000 सीसी पर 50,000 जबकि इससे ज्यादा पर 1 लाख तक टैक्स लागू होगा। लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल एंड फैशन शो सजाया गया। इस मौका पर खूबरू मॉडल्स ने दीदा जेब मलबूसात से समा बांध दिया। रैंप पर कैट वॉक को देखने वाले आंखें चपकाना भूल गए। गुलकारों ने अपने फन से हाजरीन को महसूस किया। फैशन शो का अहवाल जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। शो और रंग बिरंगे मलबूसात, जगमग करते चेहरे और दिलरुबा अदाएं, मकामी होटल में सजा सुपरस्टार प्रोडक्शन की जेर-ए-तमाम फैशन शो तो गोया टाइम पर रंगों की बहार आ गई। चीफ ऑर्गेनाइजर इस्मा चौधरी ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत जबरदस्त इवेंट गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर डुपर हिट गया शो, ये भी हर बार की तरह, और बहुत इंटरनेशनल ब्रांड थे हमारे साथ। ये हमारा सीजन 6 है और बहुत ही अच्छा जा रहा है माशाल्लाह इवेंट, और अब तक का सबसे अच्छा है और बड़ा चिल कर रहे हैं। मीन्स के जितने भी सीक्वेंस गुजरे हैं ना, एक से एक बढ़ के है माशाल्लाह। मॉडल ने दीदा जेबे मलबूसात पहनकर रैंप पर कैट वॉक की तो देखने वाले देखते ही रह गए। तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। बंदिया खान और इमरान नियासी ने सुरों का ऐसा जादू जगाया, सुनने वाले झूमने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज यहाँ पे लाहौर में एक बहुत बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है। फरहान और एमसा चौधरी ने किया है। बड़ा जबरदस्त शो है, बड़ी खूबसूरत मॉडल्स हैं, सिंगर्स बड़े आए हुए हैं और मैंने भी परफॉर्म किया है। बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा शो था, सुपरस्टार ने बहुत अच्छा शो करवाया और ऐसे उम्मीद है कि ऐसे शोज करवाते रहे। मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है। थैंक यू। जगमगाते फूल, चेहरों की बहार और साथ में रस घोलती मौसीकी शो में आने वालों को खुश कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हमजा के साथ अली हसन, कोहिनूर न्यूज लाहौर। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही।